Hello, dear students. Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to start a new chapter that is Madam Rides the Bus. This is chapter number 9 from CBSE NCRT book, that is The First Flight for Standard 10. Now, before we read, we must go through these lines. So, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. So, इस बहुत ही सेंसिटिव स्टोरी में जो हम देखेंगे एक 8 साल की लड़की जो है उसकी पहली बस जर्नी कैसे उसके गांव से जो बाहर वो निकलती है दुनिया देखने, तो कैसे जो है मतलब वो एक मिस्ट्री के बीच में खो जाती है, एक लाइफ और डेथ का जो मिस्ट्री है। बाद में वो सारे गैप्स जो दूरियां है ना, जो हम लोग वी आर आई मीन बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज़ अ डेथ एट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, उन सब चीज़ों को समझने में जाती है। सो एक्टिविटी पार्ट यू कैन डू बाय योर ओन। I'll just skip this. I'll just move to the story of this poem, that is the part 1. This story has been divided into 4 parts, so we'll go the first part today, and subsequently we'll go through the second part, third part, and then final part of this video, the chapter Madam Rides the Bus. This story is been translated by K. Sundaram and it is translated from Tamil से इसको translate किया गया है और illustrated by R.K. Lakshman. Now let's go through the reading and explanation. There was a girl named Valaimai who was called Avalli for short. She was 8 years old and very curious about things. Her favorite pastime was standing in the front door of her house, watching what was happening in the street outside. There were no playmates of her own age on her street, and this was all about she had to do. तो इस स्टोरी में जो हम देखेंगे कि एक वल्लाईमाई करके एक लड़की है जिसको शॉर्ट में नाम दिया गया वल्ली, और वो 8 साल की है और काफ़ी क्यूरियस है। क्यूरियस इज़ लाइक किसी चीज़ को जानने की उत्सुकता। You want to learn everything, whatever you see, so you just want to do that, you just want to see, feel that. तो और उसका जो सबसे फेवरेट टाइम पास वो क्या है, दरवाजे के पास खड़े होकर के और बाहर में देखते रहना, झांकते रहना कि गली में क्या हो रहा है, स्ट्रीट में क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे उस जगह पे इसके एज की और कोई लड़की या कोई प्लेमेट्स खेलने वाला दोस्त नहीं था। तो उसके पास यही सिर्फ बचा था काम, दरवाजे पे खड़े होकर के देखते रहो। बट फॉर वली, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वॉज एवरी बिट एज enjoyable एज एनी ऑफ elaborate games other children played. Watching the street gave her many new unusual experiences. लेकिन वली के लिए जो दरवाजे पे खड़ा होना था वो एक्चुअली वॉज वेरी बिट एज इंजॉयबल। इसके लिए एक ऐसा प्लेजर था, एक ऐसा इंजॉयबल मोमेंट होता था जो यू कैन किसी गेम से भी एलिब्रेट किया जा सकता है जो बच्चे खेलते हैं आजकल। तो इट इज़ जस्ट बीइंग कंपेयर्ड विद द गेम स्टैंडिंग ऑन द फ्रंट डोर, क्योंकि वहाँ पे जो है वहाँ पे दरवाजे पे खड़े होकर के स्ट्रीट में देखना उसको बहुत सारे अनयूजुअल एक्सपीरियंस जो लाइफ के हैं, नए अनयूजुअल एक्सपीरियंस सिखा गए थे या सिखा देते थे। एज यू कैन सी हियर, दिस हैज़ बीन एलिब्रेटेड इन द पिक्चर हाउ दैट वली इज स्टैंडिंग हियर, राइट। I need to ask you people, if you are good in painting, you can draw this picture and you can send in the group as well.
as a task. Now I'll move to the story. The most fascinating thing of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. It passed through her street each hour, once going to the town and once coming back. The sight of the bus, filled each time with a new set of passengers, was a source of unending joy for Valli. Now, in this part, the writer says, the translator says that कि जो उसको सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग इन सारे इंसिडेंट में जो लगता था चीज़, दैट वाज एक बस थी जो कि उसके स्ट्रीट से पास होके क्रॉस करके जाती थी, और दो टाइम हर घंटे जो है मतलब एक बस आती थी और एक जाती थी, और इसके गांव से नज़दीक के टाउन में जो है उस बस का आना जाना होता था। और उस बस में जो हर बार नए पैसेंजर्स होते थे बैठे हुए, वो जो है एक्चुअली दैट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जो है, वही उसका जो प्रसन्नता बोलिए या फिर यू कैन से कि खुशी का जो राज है या स्रोत है वली के लिए, वही था कि उसमें नए नए पैसेंजर्स, नए नए चेहरे हर बार दिखते थे जितनी बार बस क्रॉस करती थी। डे आफ्टर डे she watched the bus, and gradually a tiny wish crept into her head and grew there. She wanted to ride on that bus, even if just once. This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire. Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner. Their faces would kindle in her longings, dreams, and hopes. If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Wally would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud." Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expression of disapproval. Now in this part the narrator says कि दिन पर दिन जो है दिन ब दिन उसकी जो ये इच्छा शक्ति है वो मजबूत होती गई। छोटी सी एक इच्छा जो है उसके दिमाग में नाव घर करने लगा उसके दिमाग में कि उसको भी एक बार इस बस में चढ़ना है और टाउन तक जाना है और टाउन से वापस आना है। ये शुरू में एक इच्छा थी, बाद में जो है यू कैन से कि एक विस्टफुल डिज़ायर इसका हो गया था, और उसी के कारण जो है उस बस को घंटों निहारते रहना, उसमें जो लोग चढ़ते थे उतरते थे, एंड ख़ास करके जब स्ट्रीट के कॉर्नर पे बस रुकती थी तो लोगों को देखते रहना इसकी आदत हो चुकी थी। नाउ इट सेज, नरेटर सेज, इफ़ वन ऑफ हर फ्रेंड हैपन टू राइड, अगर उसकी कोई एक दोस्त कभी उसने अगर बस में ट्रैवल किया हुआ होता तो वली जो है उससे ज्वेलस हो जाती, एंड इंग्लिश में जो है उसको चिल्ला करके प्राउड कह के उसको चिढ़ाने की कोशिश करती, एक डिसअप्रूवल वाला एक्सप्रेशन जो है वो देने की कोशिश करती, क्योंकि नहीं वो और नहीं वली एंड नहीं उसकी फ्रेंड, वली की फ्रेंड जो है सच में इस बात को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि प्राउड वर्ड का जो है मीनिंग एग्जैक्टली होता क्या है। लेकिन वो इस प्राउड वर्ड को एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन जिसको बोलते हैं कि हम बहुत सारे ऐसे शब्द अपने आपस की बोलचाल की भाषा में जो हम यूज़ करते हैं। ओवर मेनी डेज एंड months, Wali listened carefully to the conversation between her neighbors and people who regularly used the bus, and she also asked a few discreet questions here and there. फिर बाद में जो है नरेटर बोलता है कि बहुत दिनों के बाद और महीनों के बाद वली जो है जब बहुत सारे लोगों को जो उसके नेबरहुड में रहते थे, पड़ोस में रहते थे और उस बस से आया जाया करते थे, उनको सुनने के बाद उससे कुछ डिस्क्रीट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी केयरफुल क्वेश्चंस होते हैं, मीनिंगफुल क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछा करती थी, कभी इधर की कभी उधर की।
एंड दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। और इस तरीके से उसने जो है बस जर्नी में किस तरीके का प्रॉब्लम होता है या क्या प्लेजर मिलता है, कैसे अंदर से सीन जो है साइट्स दिखते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स उसने इकट्ठे करने शुरू किए। द टाउन वॉज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज। जो शहर था वो 6 माइल दूर था उसके गांव से। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, बट टू वली who scarcely saw that much money from one month to the next month। तो उसको उस बस का फेयर जो है भाड़ा वो भी पता चल गया था। उसने एक काफ़ी सज्जन जेंटलमैन से जो है उसने सुना कि एक साइड का भाड़ा जो है दैट इज़ 30 पैसे एक साइड का, और वो बिल्कुल ना के बराबर है कुछ भी पैसे, मतलब। बट जो बली एक तरीके से डरी हुई दिख रही है, उसके पास दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू नेक्स्ट मंथ, ये एक तरीके से उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एंड इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसको ऐसा लग रहा है कि एक उसके लिए फॉर्च्यून वाला टाइम है, एक लक है, भाग्यशाली है वो। द ट्रिप टू द टाउन टुक 35 मिनट्स। और जब वो ट्रिप पे गई तो ये करीब करीब 35 मिनट्स का ट्रिप था। ऑन रीचिंग टाउन शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे। और जब वो टाउन पहुंच जाती है फिर उसके बाद सारे लोग बस से उतर भी जाते हैं, बट स्टिल सीज वहाँ पे बैठी रहती है, वो उतरती नहीं है। और दूसरे ट्रिप के लिए, बैक के लिए जो है वो अपने पैसे फेयर जो है उस कंडक्टर को पे करती है, दैट इज़ अगेन 30 पैसे। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, वो उसी बस से जो है वापस आ सकती है। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाई अबाउट 2:45। सो दिस इज़ द टाइमिंग। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है लाइक अपने घर से 1 बजे अगर दोपहर में निकलती है, उसके बाद जब वो वापस आएगी, जब टाउन पहुंचेगी तो 1:45 में वो पहुंच सकती है, बिकॉज इट वाज हर्ड बाय हर। उसको जैसा कि सुनने में मिला था कि जो शहर का जो रास्ता है वो उसके गांव से 6 माइल्स का रास्ता 45 मिनट्स का है। एंड दैट्स वाई अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल शी हैव प्लान्ड एवरीथिंग। तो उसने सारी चीज़ें प्लान कर रखी थी। एंड घर जो है वापस 2:45 तक आ जाना था उसको। On and on went her thoughts as she calculated and recalculated, planned and replanned. So it happens, at the age of, 8, you can't think like any child or kid can behave or react properly, in a mature way. But you can see how careful was she. कितनी केयरफुल थी वली, जो उसने बार बार चीज़ों को प्लान किया था, कैलकुलेट किया था, उसको रीकैलकुलेट किया, फिर प्लान किया और उसके बाद फिर से रीप्लान किया। सो दिस वाज द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन व्हाट वली हैज़ शॉन टू ट्रेवल द बस। नाउ डियर स्टूडेंट, दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। As I have told you that there are 4 parts of this story. We'll continue the story in next part of the video. And as you can see here, the comprehension, this will be your like assignment work, today's task. So you can answer these all questions and you can send the answers to me on my WhatsApp number. Thank you. We'll meet in next video with part 2 of the same story. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.